Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's video, we'll see some vocabulary. We read a text. It's an online newspaper article. It is little bit old, of 2nd February 2022. So Tagesschau. This is the website. If you want to read some more articles, you can go on this website and read some more text in German. This is very good for all the German learners. You can improve your reading skills as well as improve your vocabulary. So we'll start with this headline: record inflation in the Eurozone. I think there is no problem. You can easily understand this heading: record inflation in the Eurozone. In the Eurozone, in Europe, there are some countries that follow Euro as a currency. So these countries comes under Eurozone. So record inflation means in this text we see inflation, record inflation. Inflation has reached a new height. We see some vocabulary. हम कुछ vocabulary भी देखेंगे, कुछ words भी देखेंगे, नए words. इसको मैं playlist में डाल दूंगा. न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है. यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड फाइंड आउट सम मोर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रीडिंग टेक्स्ट. Okay, die Teuerungsrate in den Euro-Ländern ist auf 5,1% eingestiegen. अब इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर. Die Teuerungsrate, इसको रेट ही पढ़ेंगे. Die Teuerungsrate मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन रेट जर्मन में हम बोलेंगे Teuerungsrate. Die Teuerungsrate, डी आर्टिकल, इन द यूरो लैंडर मीन्स यूरो करेंसी जिन कंट्रीज़ में, लैंडन कंट्रीज़ हैं, इन द यूरो लैंडन इस्ट ऑफ 5,1% angestiegen. 5 कॉमा बोलेंगे, 5,1. इंग्लिश में पॉइंट लिखते हैं, जर्मन में कॉमा लगाएंगे. तो जो यूरो कंट्रीज़ है उनमें जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 5.1% बढ़ गया है. angestiegen मीन्स इंक्रीज़ होना. ओके, इंक्रीज़ हो गया. ये परफेक्ट फॉर्म है, ठीक है. इस्ट प्लस परफेक्ट, ansteigen और परफेक्ट बना angestiegen. तो आप नोट करेंगे यहाँ पे angestiegen मीन्स रेट बढ़ना, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ना, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ना. यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, मतलब जो कमोडिटीज़ है जो आप घर में यूज़ करते हो सामान, उनका प्राइस बहुत बढ़ गया है. ओके, रेट इज़ इंक्रीज्ड. सो इस्ट angestiegen. जब भी आपको बोलना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू से सच काइंड ऑफ सेंटेंस, यू कैन यूज़ इस्ट प्लस angestiegen. Was Experten überrascht that überrascht the experts. was यहाँ पे पूरे सेंटेंस के लिए, मतलब जो 5.1% इंक्रीज़ हुआ इन्फ्लेशन, उसने सारे एक्सपर्ट्स को सरप्राइज़ कर दिया है. इट सरप्राइजेज द एक्सपर्ट्स. दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट हैज़ सरप्राइज्ड द एक्सपर्ट्स. was Experten überrascht. देखो इस सेंटेंस कैसा है, रिलेटिव्स आर्ट्स है. was यहाँ पे पूरे सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है. ये आपने पढ़ा होगा B2 लेवल में. दिस यू मस्ट हैव लर्न was एज ए रिलेटिव pronomen. Okay, so was is used for the entire sentence. So was you Experten überrascht that surprised the experts. Grund sind vor allem die Energiekosten. Grund means reason. तो रीज़न क्या है इसका, एनर्जी क्वेश्चन. एनर्जी मीन्स पेट्रोलियम, डीजल, इनके प्राइस बढ़ने से ये इन्फ्लेशन बढ़ा है. ग्रुंड, रीज़न आर फॉर आलम स्पेशली, मेनली the energy question, the cost of energy price, the cost of fuel price. This is the main reason. For allem, mainly, the main reason, mainly. Grund means reason, noun है, der grund होता है. आप नोट कीजिए सारे words. You can note down all these words. I have seen some of the learners make a list and they type all the difficult words in the comment box, which is very very good habit, and I really like these kind of learners. And if you do this kind of habit practice, so other students can also learn from the comment. So whenever you want to write something, you can write in the comment these difficult words for the other learners. It is helpful. Next, in vielen EU-Staaten ist die Inflation noch höher als in Deutschland. अब यहाँ पे comparison है, als. You can see there is a comparison, als. Höher, hoch, हेयर, कंपैरेटिव फॉर्म. होक का कंपैरेटिव हेयर होता है. देयर इज नो सी. हाँ, हेयर. इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टन, इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टन.
इज द इन्फ्लेशन नॉक स्टिल हायर देन जर्मनी। अभी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन है वो जर्मनी से अभी और भी ज़्यादा है। तो जर्मनी में इन्फ्लेशन कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, दूसरे कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन नेशंस हैं दूसरे, उनमें इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं। इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ द इन्फ्लेशन इज स्टिल more than Germany. This is comparative charts. Höher als. This you have done in A2 level. Comparative form. So you can see in a one article you can learn all types of vocabulary. A1 level, A2 level, B1, B2 and higher. I hope there is no difficulty so far. We will read further. De-inflation. So article is D. If you want to write inflation word, you can use it. D is the article. Die Inflation im Euroraum ist auf einen Höchststand gestiegen. It's a very good sentence. The inflation in Euroraum, again Eurozone, Euroraum, der Raum. But D zone or der Raum. Article, you can take care of article. The inflation in Eurozone, Euroraum is reached, gestiegen, is reached a new height. Auf einen Höchststand gestiegen. एक नई हाइट पे पहुंच गया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरो जोन में इन्फ्लेशन अब एक नई हाइट पे पहुंच गया, एक नए रिकॉर्ड पे आ गया है। सो दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रक्चर। ऑफ einen Höchststand gestiegen, मतलब Höchststand में नई हाइट, मैक्सिमम लेवल। पिछला जो रिकॉर्ड था उसको भी क्रॉस कर दिया है। इट हैज़ रीच्ड अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, गेस्टिगन ना, इंक्रीज होके एक नए रिकॉर्ड पे आ गया। गेस्टिगन मीन्स इंक्रीज होना, ये भी सेम वर्ड है। अनगेस्टिगन और गेस्टिगन। ist gestiegen. So you can use gestiegen or angestiegen. If you are giving a number percentage, कितना इंक्रीज हुआ 5.1, तो आप angestiegen लिखोगे। एक नए लेवल पे पहुंच गया, नए रिकॉर्ड पे पहुंच गया, तो आप वहाँ पे gestiegen यूज़ करोगे। सिंपल से इस तरह से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो angestiegen में और gestiegen में। नेक्स्ट सेंटेंस, die Verbraucherpreis lagen im Januar 5,1% höher als im Vorjahresmonat. Vorjahresmonat. Die Verbraucherpreis lagen, प्रोटेरेटुम फॉर्म है, देख रहे हो आप, लागन किसकी फॉर्म है, लीगन की। सो लीगन, लागन। फेरब्राउकर आपको पता है कंज्यूमर। सो फेरब्राउकर प्राइस क्या होगा, सो दिस इज अ कंपोजिट वर्ड्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन मेजर करने का एक इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट्स एन इकोनॉमिक वर्ड। इफ़ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स सो यू मस्ट बी अवेयर, और इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर डेली, स्पेशली इकोनॉमिक टाइम्स, सो यू विल फाइंड दिस वर्ड वेरी कॉमन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट अनदर इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट्स अ मेजरमेंट, it's a way of measuring the inflation. So they are saying the consumer price index was lying past tense, was lying in January 5.1% higher than in 4-Jahresmonat, last year's this month. 4-Jahresmonat means same month but last year, 4-Jahresmonat, सेम मंथ लास्ट ईयर। सपोज हम अप्रैल मंथ की बात कर, मई मंथ की बात करें 2022, सो मई मंथ लास्ट ईयर क्या था, कोविड का केसेस कितने नंबर के आ रहे थे केसेस के लास्ट ईयर के मई मंथ में और इस ईयर के मई मंथ में। तो लास्ट ईयर का जो मई मंथ होगा दैट इज कॉल्ड 4-Jahresmonat। सो यहाँ पे भी बोल रहे हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 5.1% हायर था लास्ट ईयर। तो अभी कोई ज़्यादा नहीं है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था, हायर था 5.1%। Teilte das Statistiksamt Eurostat mit. So here is the verb mitteilen. Mitteilen means to inform. So this is preteritum form. Teilte, regular verb. Inform the statistics official Eurostat. Eurozone के जो official statistics है, जो official information agencies हैं, that has given the information that consumer price index was 5.1% higher last year in the same month. So mitteilen is the verb here, separable verb. Der Anstieg kommt überraschend, denn Beobachter hatten mit einem Rückgang auf 4,4% gerechnet.
यहाँ पे 2 सेंटेंस है। डेर आंस्टिक ये नाउन बन गया, गेस्टिगन यहाँ वर्ब था, यहाँ पे नाउन बना दिया। डेर आंस्टिक मीन्स इंक्रीज, द इंक्रीज कम्स एज ए सरप्राइज्ड, जो इंक्रीज है सरप्राइज करने वाला है। इट हैज सरप्राइज्ड मैनी एक्सपर्ट्स, okay, it has surprised many experts, so they are saying der Anstieg kommt überraschend. Then means because, so this then means because, and the verb position is second. Again this is A1 level connector, you must have done this in A1 level. Then Beobachter hatten mit einem Rückgang auf 4,4% gerechnet, because Beobachter Watcher experts ने जो कैलकुलेशन किया था, जो उनका प्रेडिक्शन था कि 4.4% रुकगांग डिक्रीज होगा। रुकगांग मीन्स डिक्रीज होना, आनस्टिक का अपोजिट आप बोल सकते हो रुकगांग। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना था कि ये जो इन्फ्लेशन है वो 4.4% कम होगा, बट 5.1% है, तो ये कम होने की बजाय बढ़ गया, इसलिए इसने सरप्राइज किया एक्सपर्ट्स को। द इंक्रीज कम्स एज ए सरप्राइज बिकॉज वॉचर, बेओबाक्टर मीन्स वॉचर, दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सपर्ट्स जो वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर हैड, ऑब्जर्वर हैड हार्टन gerechnet, so this is again okay preteritum pluscuum perfect, हार्टन plus gerechnet, rational perfect, gerechnet means calculate, estimated, so experts, watcher experts have estimated a decrease of 4.4%. again auf, preposition auf यूज़ होगा, ध्यान रखना, परसेंटेज के साथ आप ऑफ यूज़ करोगे, ऊपर भी और यहाँ भी देखा हमने। तो आप देख रहे हो वोकैबलरी वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग का ये आर्टिकल बहुत हेल्पफुल है लर्नर्स के लिए। आपका लेवल कोई भी हो, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड राइट डाउन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द नोटबुक। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर वोकैबलरी। लास्ट सेंटेंस, im Dezember hatte die Teuerungsrate noch 5,0% betragen. इन दिसंबर हाटन बेत्रागन, तो जब भी हम डिजिट की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, हम ये वर्ड बेत्रागन यूज़ कर सकते हैं, मतलब द नंबर वॉज सिंपल वार इन दिसंबर वॉज द इन्फ्लेशन रेट नॉक 5%। तो दिसंबर में प्रीवियसली दिसंबर की बात हो रही है, पास्ट की, इन्फ्लेशन टॉयरुंग्स रेट जो था नॉक स्टिल 5% था, दिसंबर में 5% था, और अब फरवरी का ये आर्टिकल है तो फेब में 5.1% हो गया। So this was the text we have seen. I hope you must have learned some new words in this text, and keep watching German class, keep supporting us. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Take care.